नहीं, आज का क्लास है कॉन्सेप्चुअल। देखो, कल हमने क्वेश्चन किया था, एक दिन टॉपिक इज गिवन टू यू, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। All you know that what is fertilization. Fertilization means fusion of sperm and ovum is called fertilization. So that what happen? You will get a diploid zygote. Fertilization means fusion of sperm and ovum to get a zygote. But the process occurs step by step. Step by step. Okay. Priyam, namaste. The process occurs step by step. You see. Okay, you see here, the process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization. ये जो definition है ये हमारा NCERT book का है. This is the definition in the NCERT book. Okay, you see I have given 4 steps here. One is the insemination. Then arrival of gametes to the site of fertilization. Then a very important concept is there, fertilizing anti-fertilizing reaction. You see, we discuss many important concepts which will help you to do the questions in the NEET exam. Then capacitation. Every year question comes from the capacitation. ये जो topic तुम्हारा ये out of NCERT है. Capacitation is out of NCERT, but you always you get question in the NEET exam. Then acrosomal reaction होता है. Then there is the cortical reaction. Then entry of sperm into the ovum. Ultimately, karyogamy or amphimixis. So, these are the 7 basic steps or events of fertilization. So, one by one we discuss. So, first come to the insemination. First is the insemination. This is the first step. Okay. So, what is insemination? Insemination means what? सीमेन एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा है ड्यूरिंग कॉपुलेशन मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉइटस. एम्फीमिक्सिस हम डिस्कस करेंगे. एम्फीमिक्सिस मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस, मींस फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस. और दैट इज आल्सो कॉल्ड कारियोगेमी. दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन. ओके. So during copulation or coitus, semen is released by the penis into the vagina. That is called insemination. Yes, very yes. Yes, Cambridge Biology is a good book for the reference. You see here. This is the female genital tract. This is the female genital tract. Okay. So insemination, due to the sexual intercourse, what happened? Semen is deposited here, and here you will find the sperms. Here you will find the sperms. Okay. So this is the first step. Okay. Insemination, deposition of semen or sperm in the female genital tract. That is called your insemination. नेक्स्ट, जो सेकेंड स्टेप तुम्हारा है नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सेकेंड स्टेप तुम्हारा है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम. द सेकेंड स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम. मूवमेंट ऑफ गैमेट्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट रिप्लाई मी व्हिच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इन द एनसीईआरटी बुक, reply me in the comment box. Yes, ampullary region. But if you see the old NCERT book, that is mentioned that there ampullary isthmus junction. But according to the new NCERT book, your ampulla is the site of fertilization. No, ampullary isthmus junction, ampulla is the site of fertilization. So let me explain. Okay. देखो, सपोज ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है. दिस इज द फेलोपियन ट्यूब. दिस इज द एम्पुला. ओके. सो मूवमेंट ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे हियर वी हैव द ओवरी.
Here we have the ovary. Okay. Now from ovary what happen? Ovulation is there, and after ovulation, ovum will enter here. Okay. So now this is the infundibulum, this is the ampulla, this is the isthmus. Infundibulum, ampulla, isthmus. Okay. So the ovum after ovulation will go to the ampullary region. This is the ampullary region where ovum arises. This is the ovum or secondary oocyte. Yes. In the similar way, what happened? The sperm enter here. Means after insemination, the sperm will comes here. This is the sperm. This is the sperm, and this is the ovum. Okay. One important point is there that every copulation will not lead to pregnancy and fertilization. Every copulation will not lead to the pregnancy and fertilization. Okay? Every copulation. The reason is that there must be the simultaneous movement. That means when the ovum is reaching here, at the same time, the sperm also should reach here. At the same time, the sperm should reach here. That means the ovum and sperm should reach this area, means this ampulla area, simultaneously at the same time. Suppose sperm आ गया है, ovum अभी तक नहीं आया है, और ovum is there, sperm अभी तक नहीं आया है, तो fertilization नहीं होगा. So that means the movement must be simultaneous. There must be simultaneous movement. ये important point है. ठीक? This is a very important point. That sperm and the ovum, they should reach the ampullar region simultaneously. Okay? And that does not occur every times. That is the reason that every copulation will not lead to sexual intercourse. Understood? That is very important point. Okay. You see? So there are some important points in the NCERT book. The motile sperm swims rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. Okay? The ovum released by the ovary is also transported to the ampullar region where fertilization takes place. This is the main point here. ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा main point है. The fertilization can only occur if the ovum and the sperm are transported simultaneously to the ampullary region. तो यही तुम्हारा main point है. मतलब एक साथ दोनों का movement होना चाहिए. This is the reason that why not all copulation lead to pregnancy. Because in every copulation, such movements do not occur. जो simultaneous movement तुम्हारा है, it does not occur in every copulation. Okay? So where there is the simultaneous movement of sperm and ovum, that copulation will lead to the fertilization and pregnancy. So movement of gamete is very vital point here. It is very vital. Understood? तो ये तुम्हारा नीट में आ सकता है, इस कॉन्सेप्ट से तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है. समझ में आया? तो कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पे. If any doubt, you can ask. Okay, next. Then another important biochemical reaction occurs here. Okay, that is called your fertilizing anti-fertilizing reaction. It is a kind of biochemical reaction that is fertilizing and anti-fertilizing reaction. तो इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है. Okay. Yes, Sony, welcome to the class. सिद्धार्थ ने पूछा है, why there is the low sperm count in males? There are many reasons. Infertility. There are many reasons of low sperm count. जैसे तुम्हारा health issues तुम्हारा है, psychological problems, diseases, many things are there. Yes. Unique, welcome to the class.
देयर आर मेनी रीजन्स ऑफ लो स्पर्म काउंट, हम डिस्कस करेंगे। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्या बोल रहा है देखो, द स्पर्म हैज ए इंपॉर्टेंट प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिंग। Sperm has important protein anti-fertilizing. Basically, it consists of what? It is rich in acidic amino acids. Similarly, ovum has fertilizing, that is the called glycoprotein. Yes, Sugandhi Dikshit, good evening बेटा। देखो, तो sperm has anti-fertilizing, ovum has fertilizing. Yes, today is the National Doctors Day. Okay. तो ट्राई करो अगले साल तुम भी डॉक्टर बन जाओ और सेलिब्रेट करो एज ए डॉक्टर, सेलिब्रेट द डॉक्टर्स डे एज ए डॉक्टर। यस, हो सकता है। तो ये तो मैं देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा, लेट मी एक्सप्लेन तुमको यहाँ पे। देखो हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। देखो तो तुम्हारा क्या एक्चुअली होता है, ये तुम्हारा हो गया स्पर्म, सपोज ये तुम्हारा हो गया स्पर्म हो गया, ठीक, स्पर्म हो गया, ठीक, ये तुम्हारा हो गया उसका एक्रोजोम, ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया ओवम, ये तुम्हारा हो गया ओवम, ये हो गया स्पर्म। ओके, so the surface of the sperm contains one important protein। यहाँ पे एक प्रोटीन रहता है, यहाँ पे एक्रोजोम के सरफेस में एक प्रोटीन रहता है, इसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग। इट इज कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक। इट इज ए प्रोटीन, इट इज ए प्रोटीन मेड अप ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड्स। इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्पर्म, इट इज फाउंड ऑन द surface of the sperm. We will discuss those things. We will discuss. All the things are here there. Similarly, on the surface of the ovum, you will find a protein. Here you will find a protein on the surface of the ovum. It is called fertilizing. It is called fertilizing. Understood? So these two proteins are there. And these two are complementary to each other. Okay, anti-fertilizing, fertilizers are complementary to each other, and they are species specific. So, देखो very very important. These two chemicals are species specific. That means anti-fertilizing of one species always react with the fertilizing of the same species. That is the reason that sperm of the one species cannot fertilize ovum of the other species. Very very important point. Suppose ये sperm एक different species का है, ovum एक different species का है, ठीक? That means sperm and ovum of the different species cannot fertilize. The reason is that these two chemicals are species specific. Yes, it is a no, it is an international platform, beta. Unacademy is now not now Indian. It is an international platform. Throughout the global, you will find the Unacademy. समझ में आया? Very important. So these two chemicals are species specific. Okay. So now what happened? Between these two, there occur the biochemical reactions. So that what happened? The sperm will come and attach here. Due to this biochemical reaction, what happened? What happened here? The sperm will come and attach here. The sperm will come and attach here. Between the reaction occurs between these two chemicals. Two chemicals. Okay. So this is the must. Due to this, what happened? The sperm will go and attach with the specific egg. So this reaction is called fertilizer anti-fertilizer reaction. It is very species specific. समझ में आया? सो ये वेरी इंपोर्टेंट है। नहीं बैन होगा, ठीक, नहीं बैन होगा। देखो तो वही मैं तुमको बोल रहा था, देखो यहाँ पे sperm has anti-fertilizing that is made up of
acidic amino acid protein. Ovum is a fertilizing, that is the glycoprotein. Fertilizing, anti-fertilizing of same species are complementary. अगर different species होंगे तो react नहीं होगा, याद रखना. Fertilizing acts as a receptor, acts as the receptor for anti-fertilizing, and the reaction between the two makes the sperm more capable of fertilizing the egg of the same species. It prevents the movement of large number of sperm towards the egg. ये एक important point है. समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा. ये point थोड़ा देख लो है. Important points are there. Fertilizing acts as the receptor. It reacts with the anti-fertilizing, and these two are the species specific, complementary to each other. That means sperm of one species only react with the ovum of the same species. It prevents movement of large number of sperm towards the egg. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. तो जब सपोज एक स्पर्म आके यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक, तो अब क्या होगा, जब एक स्पर्म आके यहाँ पे अटैच हो जाता है ड्यू टू द रिएक्शन, इट ऑल्सो डजंट अलाउ अदर लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म टू कम हियर. जब वंस दिस ये रिएक्शन हो जाता है इन दोनों के बीच, और क्या होता है तुम्हारा, इट डज नॉट अलाउ द अदर स्पर्म टू रिच. स्पर्म तो आएंगी, बट इट ऑल्सो प्रिवेंट द कमिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म नियर टू द ओवम. ठीक, सो ये उनको अलाउ नहीं करेगा. ठीक, all so due to this reaction what happen, very few amount of sperm they come and react with the ovum. So it is very very important, fertilizing anti-fertilizing reaction. Okay, तो ये तुम क्लियर हो गया. याद रखना थोड़ा है, जो एंटी-फर्टिलाइजिंग तुम्हारा होता है, it is made up of acidic amino acid, fertilizing glycoprotein से बना है. नेक्स्ट, अभी जो टॉपिक तुम्हारा है ये नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन इससे आ रहा है तुम्हारा. इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यू विल फाइंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कैपेसिटेशन. ओके, नॉर्मली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट टेक्स 5 to 6 hours for capacitation. So what is capacitation? That means it is the activation of mammalian sperm. It is the activation of mammalian sperm so that it can fertilize the ovum. Capacitation means the sperm will acquire the capacity to fertilize the ovum. That is called capacitation. तो जब तक capacitation नहीं होगा, your sperm cannot fertilize the ovum. That is called capacitation. नीट में क्वेश्चंस आता है where this event occurs. ये कहां पे तुम्हारा होता है? It occurs in the female genital tract. Capacitation occurs in the female genital. Fertilizing, anti-fertilizing मतलब क्या? ये fertilizing and these two are the kind of proteins, then they are opposite to each other. That's why the name is fertilizing, anti-fertilizing. These two are the proteins and they are opposite to each other. They are complementary to each other. देखो कैपेसिटेशन थोड़ा देखते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. ठीक, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस कैपेसिटेशन. यस, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आ रहा हूं कैपेसिटेशन के बारे में. यही थोड़ा तुम्हारा मेन है. कैपेसिटेशन तुम्हारा नीट के लिए बेटा लोग वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन नीट में आता है. तो इसका मीनिंग तुम्हारा क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ममालियन स्पर्म सो दैट इट कैन फर्टिलाइज द ओवम. मतलब द स्पर्म विल गेन द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम. तो क्या होता है देखो, इसमें समझा रहा हूं. देखो ये तुम्हारा हो गया फीमेल ट्रैक्ट. सपोज ये तुम्हारा हो गया, सपोज ये तुम्हारा हो गया, सपोज दिस इज द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. ठीक, ओके.
यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पर्म एंटर किया, यहाँ पे एक स्पर्म, यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, एंटर किया, स्पर्म एंटर तुम्हारा किया, ठीक, ओके। तो इसके ऊपर तुम्हारा ये एक्रोजोम का कवरिंग है, स्पर्म के ऊपर एक्रोजोम का कवरिंग है, समझ में आया, ओके। तो नॉर्मली क्या होता है, ओवर द एक्रोजोम यू विल फाइंड सम कोटिंग मटेरियल, कुछ कोटिंग मटेरियल्स होता है एक्रोजोम के ऊपर, याद रखना बच्चा लोग, थोड़ा समझो इसको, नीट में इससे क्वेश्चन आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवर द एक्रोजोम यू विल फाइंड सम कोटिंग मटेरियल, यू विल फाइंड सम कोटिंग मटेरियल, कोटिंग मटेरियल्स, एक कोटिंग रहता है एक्रोजोम के ऊपर। इसका कॉम्पोजिशन तुम्हारा क्या होता है, एनीवन से, ये जो कोटिंग तुम्हारा होता है, कोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ एक्रोजोम, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल इट इज, यहां पे क्या होता है, यस, एंटी फर्टिलाइजिंग तो तुम्हारा है ही, स्टिल सम केमिकल्स आर देयर, मेनली तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल प्लस ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक, यस। तो जब तक ये कोटिंग मटेरियल तुम्हारा है यहाँ पे, तो क्या होगा, जब तक तुम्हारे कोटिंग मटेरियल है यहाँ पे, ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तुम्हारा ओवम। तो नीट का सिलेबस मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही तुम्हारा आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तुम्हारा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है, समझ में आया। तो एक्रोजोम है जो कोटिंग ऑफ द दिस केमिकल्स, तो अगर ये केमिकल तुम्हारा है तो इट कैन नॉट फर्टिलाइज द ओवम, तो ये ओवम को तुम्हारा जो यहाँ पे ओवम होगा, एम्पुला में जो तुम्हारा ओवम होगा, इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, यहाँ पे जो तुम्हारा ओवम है यहाँ पे, ये उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा तुम्हारा, तो इस प्रोसेस में तुम्हारा क्या होता है, दिस कोटिंग सब्सटेंस आर रिमूव्ड, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, दे आर रिमूव्ड। इसका जो एनवायरमेंट है, फीमेल ट्रैक का जो एनवायरमेंट तुम्हारा होता है, इसका जो एनवायरमेंट, दैट एनवायरमेंट विल रिमूव दिस कोटिंग सब्सटेंस, ये तुम्हारा बाहर हो जाएगा, इसका रिमूवल हो जाता है। जब इसका रिमूवल हो जाता है, एक्रोजोम इज नाउ एक्सपोज्ड, एक्रोजोम नाउ एक्सपोज्ड, एक्रोजोम तुम्हारा एक्सपोज हो जाता है, मतलब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ओवम है, जब स्पर्म यहां तक आके पहुंचता है, जब स्पर्म यहां तक आके पहुंचता है, ठीक, ये तुम्हारा है एक्रोजोम। तो इसके ऊपर जो कोटिंग तुम्हारा था, जो कोटिंग तुम्हारा था, वो कोटिंग तुम्हारा सब रिमूव हो गया, जो कोटिंग था रिमूव हो गया, मतलब नाउ एक्रोजोम इज एक्सपोज्ड, ये जो एक्रोजोम तुम्हारा था ये तुम्हारा एक्सपोज्ड हो गया, समझ में आया, एक्सपोज्ड हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कैपेसिटेशन। और एक तुम्हारा क्या होता है, स्पर्म के अंदर तुम्हारा कैल्शियम आयन का एंट्री होता है, और एक यहाँ पे स्टेप तुम्हारा है, और एक तुम्हारा स्टेप यहाँ पे होता है, देयर इज द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, उससे तुम्हारा क्या होता है, स्पर्म टेल का मूवमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, ड्यू टू द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन देयर इज द रैपिड मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल, सो दैट क्या होता है, यह फोर्सफुली यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा, समझ आया कि नहीं। पहले तुम्हारा क्या हो गया, पहले तुम्हारा फर्स्ट स्टेप तुम्हारा रिमूवल ऑफ कोटिंग मटेरियल, एक्रोजोम इज एक्सपोज्ड, सेकंड थिंग देयर इज द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द स्पर्म, सो द कैल्शियम आयन दे इंक्रीजेस द स्पर्म, मोटिलिटी को बढ़ाएंगे। तो नाउ व्हाट हैपन, जब मोटिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारा स्पर्म यहाँ पे फोर्सफुली पेनिट्रेट करेगा तुम्हारा टुवर्ड द ओवम, समझ में आया। तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो बेटा, देखते हैं थोड़ा। ओके, मैं देख रहा हूं, ठीक। तो ये थोड़ा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा देख लो, ठीक है, यहाँ पे सो इंपोर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। ओके, तो कैपेसिटेशन मींस तुम्हारा व्हाट, एक्टिवेशन ऑफ mammalian sperm is called capacitation, and for this it takes 5 to 6 hours, it
इट टेक्स 5 to 6 आवर। नीट में आता है, कहां पे होता है? ओके, आई विल गो फर्स्ट। ओके, इट अकर्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ये तुम्हारा नीट में आता है। ओके, तो यह हो गया तुम्हारा। इनमें तुम्हारा क्या होता है? रिमूवल ऑफ कोटिंग सब्सटेंस लाइक कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक। और एक पॉइंट तुम्हारा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो नीट में आ सकता है, द ट्राइपेप्टाइड फर्टिलाइजिंग प्रोमोटिंग पेप्टाइड, उसको हम एफएपी बोलते हैं, इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग कैपेसिटेशन। एक पॉइंट याद रखना, और कैपेसिटेशन तुम्हारा, ये थोड़ा डिटेल में बोल रहा हूं बिकॉज ये टॉपिक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। A tripeptide that is called fertilization promoting peptide, that is called FPP, is essential for controlling capacitation. It is produced by prostate gland, याद रखना। This FPP is produced by prostate gland, very very important, and it is found in the seminal fluid. ये also तुम्हारा requirement है इसके लिए। Along with the secretion of the female genital tract, we also require fertilization promoting factor for the capacitation. Next step is very very important, that is your acrosomal reaction. That is your acrosomal reaction. इसका मतलब तुम्हारा क्या? Acrosome contains various enzymes. Acrosome contains various enzymes. देखो मैं तुम समझा रहा हूं। थोड़ा एक डायग्राम है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का। The diagram will show the acrosomal reaction. ठीक? ओके, तो पहले देखो तुम यहाँ पे, तो डायग्राम को हम समझते हैं क्या है। ओके, ये तो स्पर्म है। ओके, you see these are the cells of corona radiata. These are the what? These are the cells of corona radiata. Okay, and between the cells you will find what? Some cementing materials you will find. Between the cells you will find some cementing material. इसको हम क्या बोलते हैं? This is called hyaluronic acid. This is called hyaluronic acid. That means the cells of corona radiata, they are tightly held by cells of, sorry, they are tightly held by, समझ में आया? Cementing material. Okay. तो now what happens? Suppose एक sperm यहाँ पे आके पहुंचा, suppose एक sperm यहाँ पे तुम्हारा आके पहुंचा यहाँ पे, तो उसका एक्रोजोम से वेरियस एंजाइम तुम्हारा रिलीज होते हैं, वेरियस एंजाइम्स आर रिलीज्ड। जैसे कि तुम्हारा एक एंजाइम तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ एंजाइम तुम्हारा यहाँ पे देखो, एक एंजाइम तुम्हारा है हाइलोनिडेज, ठीक। ओके, थोड़ा मैं एक स्लाइड ले रहा तुमको समझाने के लिए, ठीक। लेट मी टेक ए स्लाइड। यू सी, ये तुम्हारा ओवम हो गया, ठीक, ओवम। ये तुम्हारा हो गया उसका जोना पेलुसिडा, ये तुम्हारा हो गया, ये जोना पेलुसिडा, पता है तुम लोगों को। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या है ना, वी हैव द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है ना, वी हैव द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक। ओके, नाउ between the cells we have the chemical cementing material है यहाँ पे तुम्हारा क्या है, cementing material है, इसको हम बोलते हैं ओके। सपोज एक स्पर्म आके यहाँ पहुंचा, सपोज एक स्पर्म आके यहाँ पे पहुंच गया, ओके। So now the acrosome will produce the enzyme hyaluronidase to digest the hyaluronic acid. समझ में आया? ओके, तो सपोज यहाँ पे एक स्पर्म, सपोज यहाँ पे और एक स्पर्म आया,
सपोज यहाँ पे और एक स्पर्म आके पहुंच गया यहाँ पे, ओके, सो इट इज फेसिंग द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूस अनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, those are called sperm lysins. एक्रोसोम contains various enzymes, those are called sperm lysin। देखो थोड़ा स्लाइड को जूम कर दे रहा हूं, एक्रोसोम has various enzyme, उनको बोलते हैं sperm lysin बोलते हैं, because they penetrate the each and every layers of the ovum, secondary oocyte। पहले तुम्हारा है hyaluronidase तुम्हारा है, then we have the corona penetrating enzyme, then we have the zona lysin or acrosin, okay, तो one by one, yes I will provide the PDF, I will provide the PDF। एक्चुअली क्या हो रहा है, कमेंट सब चले जा रहे हैं, ठीक, कमेंट जब तुम्हारा चले जा रहा है ना, एक मिनट लिखो, एक्चुअली बेटा लोग तुम्हारा क्या ये कमेंट सब स्क्रॉल हो जा रहा है सर, तो मैं देखने से पहले स्क्रॉल, चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लो। सो दीज आर द एंजाइम्स, याद रखना, स्पर्म लाइसिन, दे डाइजेस्ट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ओवम। क्विक, चलो जल्दी चलते हैं, एक बड़ा टॉपिक है, खत्म करेंगे इसको, ओके। तो यहाँ पे जो तुम्हारा स्पर्म आया, जो स्पर्म तुम्हारा आया, दैट स्पर्म विल डाइजेस्ट द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, अंडरस्टूड। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम रिलीज करेगा, तो यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया ये स्पर्म के लिए, तो यहाँ पे ये रिलीज तुम्हारा करेगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, इट विल डाइजेस्ट दी सेल्स, ओके। अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा, देखो अल्टीमेटली अब ये इसको सब डाइजेस्ट कर देंगे, सब डाइजेस्ट कर देंगे, अल्टीमेटली तुम्हारा एक स्पर्म आके यहाँ पे आके पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली एक स्पर्म तुम्हारा आके यहाँ पे पहुंच जाएगा, इट विल टच नाउ द जोना पेलुसिडा, क्योंकि हमारा जोना पेलुसिडा लेयर तुम्हारा है। अब यहाँ पे वो क्या एंजाइम रिलीज करेगा टू डाइजेस्ट दिस जोना, ये तुम्हारा है जोना पेलुसिडा लेयर तुम्हारा है, टू डाइजेस्ट दिस इट विल प्रोड्यूस द एंजाइम व्हाट, एक्रोसिन, एक्रोसिन और जोना लाइसिन एंजाइम। तो नाउ द स्पर्म विल डाइजेस्ट दिस लेयर, उसके बाद स्पर्म तुम्हारा क्या करेगा, इसको भी डाइजेस्ट कर देगा अल्टीमेटली, and ultimately the sperm will go and touch, ultimately one sperm will go and touch the your plasma membrane of the secondary oocyte। तो in this way one by one the sperm produces various enzyme, in this way sperm they produce, okay, in this way they produce various enzymes to digest the different layers of the ovum, basically three enzymes, hyaluronidase, corona penetrating enzyme and acrosin। Ultimately one of the sperm will touches the zona pellucida layer, so this reaction is called acrosomal reaction। So it is all about, ओके, तो इससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस, तो व्हाट हैपन हियर, यू सी, तो हियर व्हाट हैपन नाउ, द स्पर्म फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, द मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर हियर, द बाइंडिंग ऑफ ए स्पर्म टू वाइटालिन मेम्ब्रेन कॉजेस इट्स डीपोलराइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, इट इज कॉल्ड binding of a sperm to vitelline membrane causes its depolarization, okay, depolarization causes first block to polyspermy, ensures monospermy। ये कुछ पॉइंट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। The acrosomal reaction causes a kind of reaction, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। देखो समझा रहा हूं तुमको, ये तुम्हारा क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक। तो बच्चा लोग सपोज ये तुम्हारा ओवम हो गया, ये तुम्हारा हो गया ओवम, मींस सेकेंडरी oocyte, समझ में आया, ओके। इसके चारों तरफ हमारे पास क्या है, वी हैव द जोना पेलुसिडा, ठीक, ये तुम्हारा है जोना
pellucidum. Zona pellucidum. Zona pellucidum. ओके, सो हमने तुम्हारा क्या पढ़ा यहाँ पे? वन ऑफ द स्पर्म विल डाइजेस्ट ऑल द लेयर, डाइजेस्ट कर देगा और स्पर्म आके यहाँ पे पहुंच जाएगा. द स्पर्म विल रीच हियर. ठीक, ओके. व्हेन ए स्पर्म विल टच दिस लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड वाइटालिन मेम्ब्रेन. It is called vitelline membrane. It is called vitelline. Okay, vitelline membrane. समझ में आया? Okay. तो when a sperm touches here, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? There is the depolarization. इसका depolarization हो जाता है. The membrane become depolarized. इसका मतलब तुम्हारा क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो जाता है तुम्हारा ऑन द सरफेस ऑफ द वाइटल मेम्ब्रेन. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड फास्ट ब्लॉक. मतलब यहाँ पे और कोई स्पर्म आ नहीं पाएगा. अगर एक स्पर्म यहाँ पे आ जाता है तो इसके पीछे जो भी स्पर्म होंगे वो सब बाहर रह जाएंगे. इसके पीछे जो भी तुम्हारा स्पर्म रहेंगे यहाँ पे, ऑल द स्पर्म, ठीक, they remain outside. All the sperm, they remain outside. इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक बोलते हैं. फास्ट ब्लॉक मतलब it immediately block the other sperm. समझ में आया? तो when a sperm touches the vitelline membrane, there is the depolarization of the vitelline membrane. This depolarization blocks. It is called fast block. समझ में आया? लेकिन other sperm they are trying to penetrate. इसका मतलब नहीं कि वो penetrate नहीं कर पाएंगे. ये ब्लॉक कर दिया, but other sperm they are struggling. The other sperm they are struggling to penetrate this zona pellucidum. उसके बाद और एक तुम्हारा ब्लॉक होता है तुम्हारा, उसको हम पढ़ेंगे तुम्हारा, it is the slow block और cortical reaction. Okay. हम लोग पूछ रहे हैं from which book we should practice the questions. जो भी बुक तुम्हारे पास है वहां पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी उसको प्रैक्टिस करो. एनी बुक यू हैव वेयर द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक यू प्रैक्टिस वेयर द क्वेश्चंस आर. ओके, देखो यही तुम्हारा मैं पॉइंट तुम्हारा था. डिपोलराइजेशन कॉजेस फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है. पॉलीस्पर्मी एंश्योर्स मोनोस्पर्मी. इससे तुम्हारा क्या होता है? Only one sperm will fertilize one ovum. Okay? So there must be always polyspermy, not the गलत हो गया. There must be always monospermy, not the polyspermy. That means one sperm should fertilize only one ovum. I think all clear. तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया. Okay. देन उसके बाद जो तुम्हारा रिएक्शन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा नीट में आ सकता है, कोर्टिकल रिएक्शन. और एक रिएक्शन तुम्हारा दैट इज कॉल्ड कोर्टिकल रिएक्शन, तो इसको हम बोलते हैं. ये कब होता है? विदिन ए मिनट्स ऑफ फास्ट ब्लॉक ए स्लो ब्लॉक टेक्स प्लेस बाय कोर्टिकल रिएक्शन. समझ में आया कि नहीं? फास्ट ब्लॉक हो गया, विदिन फ्यू मिनट्स और एक ब्लॉक तुम्हारा होगा, उसको हम स्लो ब्लॉक बोलते हैं, लेकिन वो परमानेंटली ब्लॉक कर देगा स्पर्म को. समझ में आया कि नहीं? पहले तो फास्ट ब्लॉक हो गया, लेकिन फिर भी स्पर्म आने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स द ओवम. और एक तुम्हारा ब्लॉक होगा दैट इज कॉल्ड स्लो ब्लॉक, दैट कंप्लीटली परमानेंटली ब्लॉक्स द ऑल द स्पर्म, सो दैट ओनली वन स्पर्म विल फर्टिलाइज द ओवम. देखो मैं इससे क्या तुम्हारा होता है, लेट मी एक्सप्लेन. ये तुम्हारा कैसे होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक, इसको हम बोलते हैं कोर्टिकल रिएक्शन. देखो, यस आयुष, हेलो. सो हेलो टू ऑल, वेलकम टू द क्लास. ओके, देखो कोर्टिकल रिएक्शन आ जाओ.
ये टॉपिक तुम्हारा इस बार नीट में आ सकता है। ठीक, देखो ये बच्चा लोग हो गया, हमारा ओवम हो गया, ओवम और सेकेंडरी साइड हमारा ये हो गया। ठीक, ओके। ये हो गया हमारा जोना पेलुसिडा, ये हो गया तुम्हारा जोना पेलुसिडा। ठीक, ओके। एक स्पर्म आकर के यहाँ पे टच हो गया, एक स्पर्म आकर के यहाँ पे टच हो गया। ठीक, तो पहले हमारा क्या हुआ, योर पहले तुम्हारा क्या हुआ, पहले तुम्हारा हो गया फर्स्ट ब्लॉक हुआ। ठीक, लेकिन स्पर्म्स आर स्ट्रगलिंग टू पेनिट्रेट द जोना पेलुसिडा, तो वी नीड अनदर ब्लॉक, हमको और एक ब्लॉक चाहिए जो कि परमानेंटली इनको डिसेबल कर देगा। नहीं देखो एनटी में तुम्हारा क्या हो सकता है, देयर आर जैसे कि तुम्हारा 90 क्वेश्चंस है, डेफिनेटली मैं बताऊंगा 4 to 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा, डेफिनेटली 4 to 5 क्वेश्चंस विल बी आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि तुम नीट अभ्यास में भी देख लो वहां पे जो क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा है, जो नीट अभ्यास तुम्हारा दे रहा है, नीट अभ्यास जो क्वेश्चन आ रहा है, तो देयर आर सम क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक, हाँ वो तो भावलेट कर रहे हैं। देखो ये हम सब डिस्कस कर रहे हैं हम, यस सूरज, हाँ नीट 2020 के लिए एनफ है एनसीईआरटी एनफ है। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सो बिलो दिस मेम्ब्रेन यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, सम ग्रेन्यूल्स आर देयर बिलो द वाइटलिन मेम्ब्रेन, वी हैव सम ग्रेन्यूल्स, इनको बोलते हैं बेटा लोग कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इनको हम बोलते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ओके, तो यहां पे कुछ एंजाइम्स यहां पे स्टोर है, कोर्टिकल एंजाइम्स यहां पे तुम्हारा स्टोर है। ठीक, तो जब तुम्हारा क्या होता है, व्हेन द स्पर्म यहां पे जाके टच करता है, स्पर्म यहां पे, ओके वेरी गुड, तो कुछ कैल्शियम आयन का यहां पे मूवमेंट होता है। ठीक, कैल्शियम आयन का मूवमेंट यहां पे होता है। देखो एक तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बोला, कैल्शियम आयंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, समझ में आया? अब इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम आयन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक ट्रिक, एक पॉइंट बता रहा हूं तुमको। ठीक, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा फॉर ब्लड क्लॉटिंग वी रिक्वायर द कैल्शियम, तो लाइक दैट फॉर फर्टिलाइजेशन वी रिक्वायर द कैल्शियम आयन। ठीक, तो यहाँ पे कैल्शियम आयन भी यहाँ पे तुम्हारा है, तो उनका भी मूवमेंट होता है। तो ड्यू टू दोस कैल्शियम आयन तुम्हारा क्या होता है, ये यहाँ पे जाके फ्यूज हो जाते हैं। मींस एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जांपल, यहाँ पे आई एम टेकिंग वन कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के एग्जांपल में ले रहा हूँ। ठीक, वो क्या होगा, यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा। ठीक, एंड नाउ द कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जो यहाँ पे एंजाइम इसके अंदर है, कोर्टिकल एंजाइम्स है। ठीक, दे आर रिलीज इनटू द स्पेस, इस स्पेस को क्या बोलते हैं बताओ, व्हाट द स्पेस इज कॉल्ड, द स्पेस अराउंड द वाइटल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट, इसको क्या बोलते हैं स्पेस को, ये तुम्हारा स्पेस है, ये जो तुम्हारा स्पेस है, ये स्पेस, ठीक, स्पेस को हम बोलते हैं पेरी वाइटलिन स्पेस बोलते हैं। Yes, very good. That is called perivital space. तो अब देखो यहाँ पे जो एंजाइम यहाँ पे तुम्हारा था, they release into the space. ठीक, तो ये जो एंजाइम का दो फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स है। मेनली कौन सा एंजाइम तुम्हारा होता है ना, पेरोक्सीडेज होता है। एक एंजाइम तुम्हारा होता है दैट इज कॉल्ड पेरोक्सीडेज। ठीक, इसका डुअल फंक्शन है, ये तुम्हारा क्या करता है, इट मेक्स द जोना पेलुसिडा वेरी हार्ड, ये जो लेयर तुम्हारा इसके ऊपर हार्ड कर देगा, ये तुम्हारा क्या करेगा, इट मेक्स द जोना पेलुसिडा वेरी हार्ड, पर हार्ड कर देगा। तो जब ये तुम्हारा हार्ड हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, अदर स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे, अदर स्पर्म दोज हु आर ट्राइंग और स्ट्रगलिंग टू एंटर, दे कैनॉट
Yes, they cannot enter here. समझ में आया? ओके और भी इसका फंक्शन तुम्हारा क्या है? इट ऑल्सो हार्डन द वाइटलिन मेम्ब्रेन, इसको भी वो हार्ड कर देता है। और चलो इट ऑल्सो हार्डन द वाइटलिन मेम्ब्रेन, उसको भी हार्ड कर देता है। कोई अगर एंटर भी कर गया तो इसको भी फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। देखो दो चीज यहां बता रहा हूं। द कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के जो एंजाइम होते हैं, दे मेक द जोना पेल्सुडा वेरी हार्ड सो दैट द स्पर्म दे कैन नॉट पेनिट्रेट हियर। What they also do, they also make this layer very hard, किसको? To this vitalin membrane, ठीक? Now इसको हम क्या, अब ये तुम्हारा हार्ड हो गया, ये भी तुम्हारा हार्ड हो गया, ठीक? अब now इसको हम क्या बोलते हैं? It is called fertilizing membrane, और इसको हम बोलते हैं, it is called fertilization membrane भी इसको बोला जाता है। किसको? Means the hard zona pellucida, the hard vital membrane also called fertilization membrane, याद रखना। तो इसको हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक बोलते हैं। इट इज कॉल्ड स्लो ब्लॉक मतलब ये स्लोली लेकिन पूरा परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। तो अब तुम्हारा क्या होगा? ओनली ये वाला जो स्पर्म है ये ही तुम्हारा फर्टिलाइज करेगा, बाकी सब स्पर्म बाहर रह जाएंगे। अगर कोई एंटर भी कर गया तो ये वाइटल मेम्ब्रेन को तुम्हारा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ये भी तुम्हारा हार्ड हो गया है। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। कॉर्टिकल रिएक्शन तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में क्वेश्चन आ सकता है। कॉर्टिकल रिएक्शन से नीट में तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। यस, बायोटेक का भी क्लास लेंगे। ओके, अभी शाम जा रहा हूं बेटा, जस्ट वेट, जा रहा हूं। तो ये हो गया, तो हो गया, याद हो गया जी। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज देयर एंजाइम्स इनटू पेरीवाइटलिन स्पेस, ठीक। एंजाइम्स harden the zona pellucida which now function as the sure block to polyspermy। इसको हम बोलते हैं तुम्हारा क्या? स्लो ब्लॉक भी हम इसको बोलते हैं। ओके, विल टेक द क्लास। देखो बेटा थ्योरी भी तुमको चाहिए, जब तक तुम थ्योरी मास्टर नहीं हो गए यू कैन नॉट क्लिक द नीट एग्जाम। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो, थ्योरी भी पढ़ो। ओके चलो नेक्स्ट आओ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाओ। अब देखेंगे स्पर्म कैसे एंट्री करता है। ये भी तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इससे बच्चों का बहुत डाउट रहता है स्पर्म कैसे एंट्री करता है, ठीक, क्या होता है, व्हाट इज, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा है। देखो तो एक पॉइंट है यहाँ पे, पहले पढ़ लो। At the point of contact with the sperm, ovum forms a projection that is called as cone of reception or fertilization cone. Fertilization cone receives the sperm. Okay. So देखो बेटा, इसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक, अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। So ये तुम्हारा ओवम हो गया ना, ये ओवम हो गया, ठीक। तो जिस जगह पे तुम्हारा ये क्या करता है, तुम्हारा कांटेक्ट में आता है, ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कोन प्रोजेक्ट करता है। मतलब जहां पे तुम्हारा स्पर्म कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे कोन जैसा तुम्हारा बनता है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन कोन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन, ये वाला लाइक दिस। स्पर्म आकर के यहाँ पे उसका जो हेड होगा यहाँ पे फ्यूज होगा, स्पर्म आके तुम्हारा यहाँ पे फ्यूज होगा, ठीक। कंडीशन ये है तुम्हारा, ठीक।
So at the point of contact, we will find a fertilization cone. Here we will find a fertilization cone. ठीक, तो जहां पे कांटेक्ट तुम्हारा हुआ तो दोनों का मेम्ब्रेन देखो बेटा, पहले यहाँ पे मेम्ब्रेन ऐसा था, यहाँ पे पहले तुम्हारा क्या था, मेम्ब्रेन दोनों का ऐसा था, मतलब कांटेक्ट कुछ नहीं था इनिशियली, दोनों में कुछ मतलब दोनों का मेम्ब्रेन तुम्हारा कांटेक्ट में था, पर लेटर ऑन तुम्हारा क्या हुआ, ये दोनों फ्यूज हो गए, उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा फ्यूज हो गया, मतलब नाउ दे कम्युनिकेटेड टू ईच अदर। ठीक, उसके बाद क्या होगा देखो, स्पर्म अब तुम्हारा क्या करता है, यहाँ पे अपना डोनेट करता है, क्या डोनेट करेगा, स्पर्म अपना न्यूक्लियस को डोनेट करेगा, यहाँ पे देखो क्या न्यूक्लियस डोनेट कर रहा है। ठीक, क्या डोनेट तुम्हारा कर रहा है, यहाँ पे अपना सेंट्रियोल दे रहा है, अपना सेंट्रियोल दे रहा है यहाँ पे, सेंट्रियोल, और अपना क्या दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा दे रहा है, समझ में आया कि नहीं? ओके, ये तुम्हारा दे रहा है। देखो एंट्री मतलब नहीं कि पूरा स्पर्म अंदर घुस जाएगा यहाँ पे, ठीक, ओनली तुम्हारा अपना स्पर्म डोनेट करता है, क्या डोनेट तुम्हारा करता है, अपना सेंट्रियोल देता है स्पर्म, स्पर्म गिव्स इट्स ओन सेंट्रियोल। मेरे को बताओ स्पर्म का कौन सा सेंट्रियोल है, स्पर्म में दो सेंट्रियोल होते हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, ये कौन सा तुम्हारा सेंट्रियोल तुम्हारा है, ये तुम्हारा है कौन सा सेंट्रियोल तुम्हारा, यस डिस्टल सेंट्रियोल, ये तुम्हारा स्पर्म का डिस्टल सेंट्रियोल है। ठीक, ओके, न्यूक्लियस तुम्हारा देगा, माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा देगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, ये वाला पार्ट तुम्हारा डिटैच हो जाता है और डिसॉल्व हो जाता है, द मिडिल पीस एंड टेल डिसॉल्व। ठीक, और ये जो वाला पार्ट तुम्हारा रहता है यहाँ पे आके मिल जाता है, इतना जो पार्ट तुम्हारा होता है ये यहाँ पे तुम्हारा फ्यूज हो जाता है, मतलब ये वाला जो पार्ट, दिस बिकम द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द एग, उसका मिडिल पीस एंड टेल तुम्हारा डिसॉल्व हो जाता है, समझ में आया? ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है, तुम्हारा ये जो तुम्हारा ओवम है ये तुम्हारा है सेकेंडरी oocyte है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर सेकेंडरी oocyte, ये ओवम नहीं है, सेकेंडरी oocyte। ठीक, ये तुम्हारा एंटर किया हुआ है मियोसिस 2 में, बट टेम्पोरली अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेकेंडरी oocyte हैज ऑलरेडी एंटर इनटू द मियोसिस 2, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ है उसका डिवीजन, एंड दैट इज अरेस्टेड एट व्हाट, मेटाफेज 2 में वो तुम्हारा अरेस्टेड हुआ है, तुम्हारा मेटाफेज 2 में। ठीक, और एक बात, जो मामलियन ओवम होता है इट डज नॉट हैव सेंट्रियोल ऑफ इट्स ओन, उसका खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है, उसका खुद का सेंट्रियोल तुम्हारा नहीं होता है, दैट इज द रीजन दैट ये तुम्हारा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इट इज वेटिंग द स्पर्म, जब स्पर्म इसका सेंट्रियोल डोनेट करेगा तभी तुम्हारा डिवाइड होगा। देखो अब तुम्हारा ये तुम्हारा आ गया है, ठीक, अब ग्रेजुअली तुम्हारा क्या होगा, स्पर्म पूरा यहाँ पे घुल जाएगा उसका हेड। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो ओवम है तुम्हारा, इसका ओवम है तुम्हारा, ओके, जो डिस्टल सेंट्रियोल था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर, it will form the spindle fiber, the distal centriole forms two centriole and they form spindle fiber for the division। यहाँ पे तुम्हारा जो मेल का न्यूक्लियस है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, मतलब ओवम के अंदर स्पर्म का भी न्यूक्लियस तुम्हारा है, दैट इज कॉल्ड मेल प्रो न्यूक्लियस। सेंट्रियोल तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। ठीक, अब इसका डिवीजन होगा, अब इसका डिवीजन होगा, और तुम्हारा क्या होगा इसका डिवीजन होने के बाद, नाउ इट बिकम्स योर व्हाट, इसमें दो चीजें आएंगी, इसका डिवीजन हो जाएगा,
you will get a very small second polar body. You will get a very small second polar body and a large functional ovum or oocyte. अब इसको हम ovum बोलेंगे. ये तुम्हारा था सेकेंडरी oocyte तुम्हारा था. This was the secondary oocyte. This was the secondary oocyte. अब उसका जब स्पर्म का सेंट्रियोल यहाँ पे आ गया, इसका डिवीजन तुम्हारा हुआ. ये तुम्हारा मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था, म्योसिस 2 में एंटर कर गया था, बट इट वाज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2. ठीक, अब उसका डिवीजन हो जाएगा. अब इसका जो न्यूक्लियस तुम्हारा होगा, इसका जो न्यूक्लियस ओवम का, इसको हम बोलते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस. इसको हम बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस. और यहाँ पे तुम्हारा तो है ही तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया मेल प्रोन्यूक्लियस. समझ में आया? ये तुम्हारा हो गया मेल प्रोन्यूक्लियस, ये तुम्हारा हो गया फीमेल प्रोन्यूक्लियस. अब इसका क्या होगा? फ्यूजन होगा. अब दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा. एंड दे फॉर्म द डाइप्लॉइड जाइगोट. उसका हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस और कैरियोगेमी बोलते हैं. देखो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं. देखो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है तुम्हारा नीट के लिए, याद रखना है इंपोर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट्स, mammalian egg lacks centriole of its own. ठीक, distal centriole divides to form two centrioles to generate mitotic spindle for cell division. जो मैं बोल रहा था बच्चा लोग, very very important point. Secondary oocyte is temporarily arrested at metaphase 2 due to what? Metaphase promoting factor. ये याद रखना, एक पॉइंट याद रखना. कुछ फैक्टर्स होते हैं, those are called metaphase promoting factor. Due to those factors, the secondary oocyte is temporarily arrested at the metaphase 2 of the cell division. जब स्पर्म का एंट्री होता है, this factor breaks down. Due to the entry of sperm, this metaphase promoting factor breaks, and there is the generation of what? Anaphase promoting complex. समझ में आया कि नहीं? मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर तुम्हारा ब्रेक्स हो जाता है, एंड देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? अनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स व्हिच कंप्लीट्स द म्योसिस 2 ऑफ द सेकेंडरी oocyte to form ovum and a second polar body. So these points are very very important for the NEET exam. समझ में आया? एंड द लास्ट स्टेप, ये तुम्हारा लास्ट स्टेप तुम्हारा है. Head of the sperm separates from the middle piece tail and becomes male pronucleus. Nucleus of the ovum condenses to form female pronucleus. Both they fuse with each other and they form the zygote. Okay. So this was the overall all the events of the fertilization. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है यहाँ पे. ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग से तुमको बहुत हेल्प करेगा बच्चा लोग. जो नोट तुमको हेल्प करेगा, तुम इसको डाउनलोड कर लेना. ठीक, यू डाउनलोड दिस वन. इंपोर्टेंट पॉइंट्स आर देयर यहाँ पे, ये तुमको हेल्प करेगा. ठीक, सो टुडे क्लास ओवर. तो होप यू एंजॉय द क्लास. ठीक.